ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। मैं टाइम था पर शुक्र है रब दा बहुत बिजी हूँ। मतलब हम लोग कभी तकरीबन एक दिन छोड़ के एक फिल्म का गाने टाइटल आपके सामने भी रिकॉर्ड हुआ है, गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं और फिर एक टीवी शो भी आ रहा है उसमें भी मशरूफ हो रखे हैं और फिर बहुत सारे और काम बहुत हैं, म्यूजिक के भी हैं। तो शुक्र है रब दा। और सॉरी चाहता हूँ, मैंने कल भी आपको टाइम दिया था, फिर मैंने कभी चेंज करूँ और आज का रखा जी भाजी। अच्छा भाजी वैसे कहते हैं कि असली कलाकार असल फनकार ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ जी। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ। ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ, ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ, ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ ਤੁਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜੀ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੁੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਨ ਤੁਨਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ, ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ ਛੁਈ ਮੁਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੀ ਬੋਲੇ ਆਹਾ ਚਕਨਕ ਚਕਨਕ। ਸੋ ਹੁੱਕ ਲਾਈਨ ਸਭ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਟੈਪ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਜੋ ਡਰੈਸਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਰਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਾਣੇ ਬੋਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੁਨਕ ਤੁਨਕ, ਸੋ ਡਰੈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਪਰਫਾਰਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ? ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਕਿ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੇਨ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ अनबैलेंस तो नहीं हुआ या कोई स्टैप खत्म खराब तो नहीं करता जी जी। तो होंदा टीम वर्क है, कैमरामैन दा फिर पूरे स्टाफ दा डायरैक्टर दा जी है तो सारे मिलके टीम वर्क हैगा जी। इवन म्यूजिक दे विच स्टूडियो दा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो दा, इंजीनियर दा जी, म्यूजिशियन दा। सो शुक्र है सारे चंगे लोग मिलते गए और मिलते जा रहे हैं और रब दी मेहर है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁੱਲ ਤਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲ ਤਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। तो माँ ने मैंने जन्म दिता और कर्म भी दिता, तकदीर भी दी और उस तो बाद फिर बाकी ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਮੁਖੜੇ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਸਾਰੇ, ਬਟ ਤਾਰਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਗੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਗੱਡੀ ਰੇ ਤੇ ਨਾ ਚੜਦੀ ਛੜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਟੂ ਤੇ ਟੱਪ ਚੜਦੀ ਬੋਲੋ ਤਾਰਾ ਰਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਇਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਜ਼ हंसराज साहब जी और हंस पाजी और फिर उन्होंने बेटे नवराज जो साड़ा दिमाग है जी, और युवराज बहुत सोहना गाता है और गुड लुकिंग भी है, बड़े सोहने है, इन्हों बड़ा मज़ा आता देख के उन्होंने और अच्छे नेचर है ने, बहुत डाउन टू अर्थ ने और अस तकरीबन इकट्ठे होते रहने और बहुत अच्छा लगता है जब खाने के मुकाबले होंगे ने। एक बारी बाहुबली हम लोग करने गए थे रिकॉर्ड हैदराबाद, तो मैंने अपनी बेटी अजीत को बोला मैं कि आप भी आ जाओ और नवराज भी आ गए। तो मेरी सबसे छोटी बेटी रवाब उस टाइम बहुत छोटी थी और हम लोगों ने बाहुबली के टाइम मैंने गाना गाया जियो रे बाहुबली, तो तीनों लैंग्वेज में मैंने ये गाया, तमिल, तेलुगु और हिंदी, और बहुत हिट हुआ ये गाना। और मुझे याद है गाना गाने के बाद बोलते कि पापा जी क्या खाएंगे, तो मैंने कहा चलो बहुत मशहूर बिरयानी है, तो बोलते मैं तो वेज हूँ। मैंने कहा आप वेज बिरयानी खा के देख लो। वेज बिरयानी खाने के बाद खूब खाया, खा के फिर एक आइसक्रीम मशहूर है वो मेरे ख्याल वो सामने आपको मिक्स करके देते हैं, फलूदा से कुछ अलग है, मुझे नाम नहीं आ रहा, बहुत मशहूर है। और हम लोग वहाँ गए तो बोलते कि ऑर्डर करें, तो मैंने कहा बताओ क्या खाओगे, बोलते आप जो आप खाओगे मैं खाऊँगा।
तो मुझे याद है मैंने लोग 1-2 टॉपिंग डालते हैं, वहाँ पे 9 टॉपिंग थी, तो मैंने कहा 9 की 9 डाल दो, तो वो वेट से आइसक्रीम खिलाते हैं 200 ग्राम 200 ग्राम ऐसा कर, तो 1 किलो वेट हो गया एक आइसक्रीम का। तो अब वो कह बैठा था कि 2 आप खाओगे, तो 1 किलो मैं खा गया, 1 किलो वो खा गया। अब जो जैसे फिनिश किया मैं कहा एक और खाएं, तो बोला मैं गिर जाऊंगा, नहीं अब्बा जी नहीं मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं करना नहीं। तो हम लोग खूब फन करते हैं, गाना होता है, खाना होता है, और ज़्यादा हमारे सिर्फ पहले बहुत सारी म्यूजिक की बात होती है या फिर खाने की बात होती है, तीसरी बात कुछ है नहीं। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਨਸਰਟ? ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਵਨ ਮੈਂ ਡੈਕ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਿਰ ਬੈਠ ਕੇ खूब सारा ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੰਸ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਕਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜੀ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ 1982 ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਦਲੇਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ 2-3 ਲੋग आए जी और कहते कि अंडमान निकोबार चलना है। अच्छा जी, चलो चल लें जी, ठीक है, और पैसे वैसे का इंतजाम करो। ए मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब हम नहीं रहे, बट बहुत कमाल सो बोलते कि चलो अंडमान निकोबार चलते हैं, चलते हैं। मैं अपनी सिस्टर ने कहा, छोटी नूं कि मैंने पैसे चाहिए जी, किन्ने पे कहने, मैं क्या कोई 100 रुपये चाहिए बहुत है। अच्छा जी। सो उन्हें जाके अपनी पायल बेच दी और मैंने 80 रुपये लैके देने, वो भी छोटी सी। तो मैं अपने दोस्तों नाल सी सोचा कि चलो अंडमान निकोबार तो पता नहीं किहड़े पासे है, चलो पहला नेपाल घूमते। अच्छा जी। चलो असीं उत्थों ट्रेन फड़ी, गोरखपुर लास्ट स्टेशन है नेपाल जाने वास्ते। गोरखपुर उतर गए, उत्थे गुरुद्वारे गए, क्योंकि ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜੀ। मैं अपने दोस्तों ने कहा की करिए, कहते सोच के दस दें। तो एक जगह म्यूज़िक चल रहा था, हम लोग सड़क पे घूम रहे थे, तो तीसरी मंजिल पे बहुत स्पीकर में बड़ी अच्छी आवाज़ें आ रही थी गाने की जी। तो हम लोग सीधा चले गए ऊपर, वो देख के डर गए कि ये कौन लोग हैं, पगड़ी वगड़ी हम लोग थी, बड़ी थी, पतले पतले बच्चे थे जी। बोले जी सारे डर गए, गाना छोड़ देने, तो डरो मत, हम भी सिंगर हैं जी, तो हमको आपकी आवाज़ अच्छी लगी तो ऊपर आ गए। बोले ठीक है, ये बैठी, तो उन्होंने गाना वाना हमारा सुना, तो उन्होंने फिर रिकॉर्ड बजाया उस्ताद राहत अली खान साहब का। मुझे नहीं पता था कि कौन है, मैंने कहा ये कौन गा रहा है इतना अच्छा, देखिए ये राहत अली खान साहब गा रहे हैं। मैंने कहा यार अच्छा, लाहौर में और इतने अच्छे से आर्टिस्ट हैं जी। बोले जो लाहौर के नहीं, इंडिया के आर्टिस्ट हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं, कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में? बोलते नहीं यहीं गोरखपुर में रहते हैं जी। बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये सिखाएंगे, म्यूज़िक सिखाते हैं? बोलते हैं बहुत मूडी हैं, दिल करे सिखाएं, दिल करे नहीं सिखाएं। हम लोग तो बड़ी देर से उनको जानते हैं, पर मूडी आदमी। तो मैं अपने दोस्त को बोला कि चलो यहीं रहते हैं, तो हम लोग फिर गुरुद्वारे वालों को बोला कि हम लोग यहाँ पे रहने को 3 महीने तैयार हैं। तो बोलता दोस्त बोलता क्या, मैंने यार यहाँ ज़िंदगी बन जाएगी, सीख लेंगे इनसे जी। तो घर में मैंने सिर्फ मेरी सिस्टर को पता है, कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं पता, घर में किसी को पता नहीं मैं कहाँ गया। तो
उस्ताद जी के बाद जब उन्होंने 3 महीने में दिन रात उनके पीछे जाता घूमता था, तो 3 महीने बाद उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं सिखाऊंगा। 1 साल हो गया मुझे सिर्फ 2 लाइनें सिखाई उन्होंने। तो एक दिन मैं पार्क में बैठ के बहुत दुखी हो गया और रो रहा था। तो बोलते क्या हुआ, ढूंढ के आए मुझे, क्या हुआ तुझे? मैंने कहा कि आप बहुत देर कर रहे हो आप सिखाने में, तो जो आप कर रहे हो आपको पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? तो वहाँ पे एक होर्डिंग लगाता था बस स्टैंड के पास। मैं चाहता हूँ मेरी हर जगह मेरे पूरे इंडिया में मेरे होर्डिंग लगने चाहिए, मेरी फोटो होनी चाहिए। तब मेरा नाम दिलेर मेहंदी नहीं था। मैं कहा हर जगह लिखवाना चाहिए दिलेर सिंह। और मैंने कहा और मैं जब रेलवे स्टेशन जाऊँ तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाए, पुलिस लाठी चार्ज हो जाए, तो बड़ा हंसे, बोलते ये तो मेरे तेरे उस्ताद के साथ नहीं हो रहा, तेरे साथ कैसे हो जाएगा? मैंने कहा बस एक दिन छोड़ के भाग जाऊँगा, जैसे मैं घर से आया था ना, ढूंढते रह जाओगे। तो फिर उन्होंने बड़ा प्यार किया बेटा। एक दिन वो लेटे हुए थे और एकदम प्यार में बोलते कि एक दिन आएगा मेरे बेटे के साथ आशा भोसले गाएगी। 1982 में बोला ना, 1996 में आशा भोसले ने साथ गाया आग लड़ती है तो लड़ने दो, खौफ लक लड़ती है तो लड़ने दे, वो डरती है तो डरने दे, और नच मेहंदी चक्कू तो मैं बोले बोले नच मेहंदी हूँ, ये बड़ा गाना हिट कर रवीना टंडन के साथ। तो एक ब्लेसिंग होती ना, वो बहुत बड़ी होती है, उस्ताद की ब्लेसिंग। तब उन्होंने बोला, मैं सोच रहा था कि पता नहीं उस्ताद जी नशे में कुछ ही बोले जा रहे हैं। तब मैं हंसा, कहाँ आशा जी कहाँ मैं, पर लेकिन देखो आप दुआ कैसे करते हैं। तो ये बात सही है, मैं गोरखपुर में ऐसे दुखी हुआ था और लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। उसकी वजह ये कि जो चीज़ मुझे 95 में मिली वो मैं 1982 में चाहता था। तो मुझे लगा नहीं यार, बहुत ये भगवान की बड़ी ब्लेसिंग है कि बहुत बड़ा नाम दिया है। और अभी मुझे मालूम है कि पूरे 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 ग्लोबल के अंदर, दुनिया के अंदर, कहीं सुबह हो रही, कहीं शाम हो रही, कहीं ना कहीं हर जगह मेरा गाना बज रहा है, लोग सुन रहे हैं। ये बड़ी बड़ी मेहरबानी रखी। और रही बात फिर मैं 1986 में अमेरिका चला गया और बहुत अच्छी होश हो गई थी। तो एक अच्छी ज़िंदगी जो होती है वो देखी। बहुत सारी घर के अंदर ही हम लोग के पास 16 गाड़ियाँ थी, मेरे बड़े भाई 2 वहाँ थे, छोटा मेरे साथ था। 16 घर में गाड़ियाँ, मस्ती खूब, अच्छा खाना, अच्छी सोच। और तब मेरा नाम दिलेर मेहंदी हो चुका था। तब मैं गज़लें का शो करता था यूएस में, तो बहुत सारी शोज़ किए मैंने गज़लों के। और इसलिए मैंने सब कुछ बचपन में अच्छी तरह देख लिया। फिर उसके बाद जो भी हुआ वो फिर सर चढ़ के बोला नहीं। जैसे लोगों के 2-3 गाने हिट होते हैं, पागल हो जाते हैं, और जिनके 10-12 में तो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैंने सीखा। एक मेरे उस्ताद जी ने ये शर्त रखी थी कि एक बात मैं सिखाऊंगा, एक तो कभी तुम बाल नहीं कटाओगे, खुद राहत अली खान साहब मुस्लिम थे, तुम बाल नहीं कटाओगे, बड़े होके पगड़ी बांधोगे, और कभी शराब को हाथ नहीं लगाओगे। तो ये मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली उस्ताद जी की तरफ से। तो सबको ऐसे उस्ताद मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया भाजी, सीरियसली ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਭਾਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਕਰਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਦਲੇਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ। ਦਲੇਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੀਅਰਲੈਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇਪਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੀ ਜਲ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ याद है जब छोटा सीगा, और ये बात को भी लोग ध्यान रखें, जब कोई बच्चा अगर रो रहा है किसी बात से, कि वो तो उसके ऊपर गौर करो कि वो कहना क्या चाह रहा है। तो मैं जब छोटा था तो मैं कहता यार लाइट जला दो, मुझे तो कि चाहे इतनी सी रोशनी दिखा दो,
जी आज तो लेकिन तब क्या होता था कि तब मेरे बड़े भाई मतलब ज़्यादा जोर से नहीं, लेकिन कभी मुझे थप्पड़ वगैरह मार देते थे, चल सो जा, क्या है तू, ये लाइट है, या सब चिल्लाने लगते, क्या है तू, क्या लाइट से क्या हो रहा है। पर उनको ये समझ नहीं आता कि मुझे डर लग रहा है, अंधेरे से डर मुझे लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चा अगर कोई बोले जी, बार बार रिपीट करे किसी बात को, उस पर माँ बाप या जो उसको देखने वाले टेक केयर को ध्यान करें कि जरूर कोई बात होगी जी। तो ये है। मुझे अंधेरे से नहीं, लाइट चलती रहे तो ठीक है, लेकिन अंधेरे से मुझे लगता है कि पता नहीं कुछ ऐसा होता है, घबराहट होती है ਜੀ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋਵੇ? ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਬੜਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੀ ਰੱਬ ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਡਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦਾਸ ਸੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਮ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਰਬਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ, ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਾਪਾ ਲੇਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ? नहीं ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਚਾਹੇ ਮੀਕਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਡੇਰਿੰਗ ਇਦਾਂ ਕਰਨ 'ਚ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਕਿ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਬੀ ਅਦਬ। ਹਾਂ ਅਦਬ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਮ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਵਾਏ ਸੀ ਭਾਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿੱਤੀ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲਾ ਆਂਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਲੇਗ ਫੈਲ ਗਈ, ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ এনवायरमेंट ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ 3 ਅਰਥਕੁਇਕ ਦੇਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ 8.5 ਅਰਥਕੁਇਕ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਡਰਾਮਾ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 to 3 ਵੀਕ ਸਭ ਨੇ ਹੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੀ सब फेल हो गए बेचारे, आम बंदा भी, NGO भी, अच्छे से अच्छा निडर आदमी भी, हेल्दी भी, गौरमेंट की सब हाथ खड़े कर ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਆਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਜੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੇੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸੈਂਪਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ। 1 ਹੈਂਡ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ NGO ਨਹੀਂ, 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੇੜ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਇੱਧਰ ਆਏ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ITO ਵੱਲ ਜਾਂ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਔਰ ਜੇਲ ਰੋਡ ਜਾਂ ਪਿੰਡਪੁਰ ਉਸ ਤਰਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮ ਪਿੱਪਲ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 75 ਬੰਦੇ ਟੀਮ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸੈਂਟ ਲੂਇਸ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਬਟ ਅਮਰੀਕਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਤੋਂ, ਸੇਵਿੰਗ ਚੋਂ।
और तब मेरे सारे रिश्तेदार यार दोस्त बड़े गुस्से होंदे सी, रिश्तेदार फैमिली वाले बोलते यार तुसी कोई डिस्को ते खोलो या कोई पेट्रोल पंप लो, कोई बिजनेस करो, तुसी इन्ना पैसा इन्ना क्यों बर्बाद कर रहे हो। मैनूं लगदा सी यार काम तो फिर होंदे रहणगे, लेकिन इस वक्त काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर मुझे लगता है कि दिल्ली में कोई भी उस टाइम का अगर स्कूल होगा तो कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जहाँ मेरे हाथ के 10 पेड़ स्कूलों में भी ना लगे हों। गेम खेडन वाले हैं, बहुत प्यारी गेम है और उसका नाम है रैपिडो एक्सप्रेस। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ? बिल्कुल। चलो तो फर्स्ट है भाजी, बीच और हिल स्टेशंस। फिर तो बोला बीच और हिल हिल स्टेशंस। स्टेशन, मोबाइल और वॉच, मोबाइल, पिज्जा और पराठा, पराठे, सिंगिंग और डांसिंग, बहुत, भंगड़ा और डिस्को, पंगड़ा, हेमा मालिनी या कटरीना कैफ, हेमा जी, बॉलीवुड और हॉलीवुड, बॉलीवुड, चाय और लस्सी, बहुत, लंदन और कनाडा, कनाडा, विराट और धोनी, बहुत, एसी और खुली छत भाजी। दोनों, वाओ। फेसबुक और व्हाट्सएप, व्हाट्सएप। अच्छा भाजी, एक डायलॉग है हम जिਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ मूवी है और डायलॉग भी बड़ा फेमस है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं लेकिन नाम है शहंशाह। ਤੁਸੀਂ ਇਸ डायलॉग ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। और रिश्ते से ਤੁਹਾਡੇ बाप लगते हैं, नाम है साਡਾ शहंशाह। पाजी वो रह गया ना हाई। वो मैंने किया था बच्चन साहब के बर्थडे पे, मैंने भेजा था उनको करके वेरी नाइस। कि रिश्ते जी कि मैं क्या रिश्ते में तो आप सबके बाप हैं। हाँ रिश्ते में तो है ही, रिश्ते में तो आप सबके बाप लगते हैं। मैं आपका फैन हूँ दिल्ली में। वेरी नाइस भाजी जी। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रह गया, आरजे गीत या आरजे सुदीप? बहुत, थैंक यू भाजी। अच्छा भाजी, वैसे ना सच्ची दसी तो साडा जान दा मन बिल्कुल नहीं कर रहा। नहीं थैंक यू सो मच आए और मैं बहुत अच्छा लगा और बड़ी बड़ी खुशी है कि थैंक यू सो मच भाजी कि ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸਕੇਡਿਊਲ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। बाकी जितने फैंस हैं और आपके लिए भी मेरे बहुत सारे गाने आ रहे हैं लाइन लगा कर, जी डांसिंग नंबर, मोटिवेशन वाले, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। मतलब एक दो गाने तो ऐसे कि जो अब हर गली नुक्कड़ में बजने वाले हैं, खूब मज़ा आएगा जी। अच्छा भाजी, वैसे ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋ बट फिर भी ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ एक्सप्लेन करके ਦੱਸਿਓ एक लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मैं पूछूंगी। ठीक है। तो पाजी हमें तो आपसे बात करके बहुत मजा आया जी। आपको हमसे बात करके कैसा लगा? मुझे खुशी बहुत हुई। एक तो आपका मुझे वो याद रहा कि आपके फादर साहब मेरा गाना बजाते थे जी। तो मैं पहले तो उधर चला गया मेरा माइंड कि अच्छा कैसा होता है क्या हो। जी। बाकी सुखदीप इतना अच्छे पंजाबी बोलती हैं, पंजाबी हैं, बड़ा बहुत अच्छा लगा। बहुत थैंक यू सो मच भाजी। थैंक यू सो मच। अच्छा कि तुम्हें शायद पता होगा कि भाजी का इश्क नचावे अभी 8 महीने पहले ही रिलीज हुआ है। क्या बात? 1.2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। हाँ एक बार और बताना चाहता हूँ, मेरे फैंस जो हैं, मेरा ये है कि हम लोग प्योर ऑर्गेनिक पे चलते हैं और हम लोग कभी ऐसे नहीं कर पाते कि जैसे हमने इंस्टा डाला तो पता लगा सीधा भी उस पर 3 लाख लाइक आ गई है, 5 लाख लाइक आ गई है, लाख नहीं, हमारे लाइक उस पर मेरे ख्याल ज़्यादा 3,000 4,000 5,000 बड़ी मुश्किल से होते होंगे। तो हम लोग प्योर ऑर्गेनिक हमारे इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है और यूट्यूब पे भी है। हम लोग मिलियंस एकदम दिखाते नहीं हैं। हाँ जहाँ हमें मिलियंस दिखाने होते हैं सो अगर आप डिजिटल नेट पे जाओगे तो हमारे गानों से बड़ा कोई गाना है ही नहीं वर्ल्ड में। अगर आप फेक वर्ल्ड में जाओगे तो हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं और फिर भी आप सबका प्यार है कि आप लोग पसंद करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाजी ये गाना हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, बताइए। जिसके बारे में अभी इश्क न इश्क चाहे। न चाहे। ओह एक था रांझा जोगी जिसने छड़ दिया तख्त हजारा, ओ हट जा पीछे मुड़ जा सोनिए, इश्क नूं रब दियां मारा, इश्क दा डंगिया दम नहीं लैंदा, ओ कोई कर ले जतन हजारा, दम बदम इश्क नचावे दम बदम, इश्क नचावे दम 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 दम। एक और गाना बहुत अच्छा उन्हें अभी आओ जी किया है, आओ जी तुम आओ घर मारो रंग डारो घूमर घर आओ,
ये मामे खां बहुत अच्छा आजकल गा रहे हैं, उनकी बेटी की शादी थी और हम लोग उन्होंने कहा कि पाजी मेरी मम्मी चाहती हैं कि आप हमारे बेटी की शादी में आओ। तो मैंने कहा मम्मी ने बोला तो ठीक है। हम लोग फिर पूरा ग्रुप अपनी तरफ से लेके गए और हमने सोचा जैसलमेर जाना है, पर जैसलमेर से भी 150 किलोमीटर हम लोग को अंदर गए हम लोग। आप हैरान हो जाएंगे कि जब हम वहाँ पे गए तो उस गांव में बिजली भी नहीं थी और उस दिन जनरेटर वगैरह आया हुआ था। लेकिन हम जब जा रहे थे 150 किलोमीटर तो सिर्फ एक ही गाड़ी मेरी या हमारे ग्रुप की जा रही थी, ना कोई उधर से कोई साइकिल से भी कोई आ नहीं रहा था, ना जा रहा था। इतना अंधेरा और ग्रुप पूरा डरा हुआ, कह रहे पाजी हम लोग को इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, इतनी दूर नहीं जाना। अरे यार चलो, अब हमको कौन कुछ कहने वाला। जब वहाँ गए तो आप यकीन करो मेरा ख्याल आसपास के गांव से भी लोग दूर दूर से 60-60 किलोमीटर से 70 से कोई 150 लोग आए थे शादी के अंदर और 1500 लोग जो लोग गांव से ऐसे जहाँ पे पानी भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी। और ग्रुप कहता है कि हम तो यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे, हम तो सांस नहीं ली जा रही। मैंने कहा यार हमारा काम है सिर्फ म्यूज़िक का, देखो तो करते जादू। जब हमने वहाँ के हमने 2 घंटे वहाँ परफॉर्म किया और लोग इतना खुश हुए, इतनी मस्ती हुई वहाँ पे। और उसके बाद मामे खां की मम्मी, उनकी बेटी, बहुत दुआएं उनको मिली। तो ये गाना मैंने स्पेशल उनकी बेटी के लिए बनाया, आओ जी आप देखिएगा, आओ जी बनाया और उसको शूट किया और फिर गिफ्ट किया उनको। क्या बहुत बढ़िया। अच्छा कि तुम्हें पता है कि पाजी से मिलने से पहले मैं बहुत नर्वस हो रही थी, लेकिन जैसे पाजी का नाम है ना दिलेर, तो वो पॉजिटिव वाइब्स आ गई और ऐसा इम्पैक्ट आया कि डर पता नहीं कहाँ है। और मैं यहाँ सोच रही हूँ कि पाजी का स्टेप हो, पाजी का गाना हो और गाना हो तुनक तुनक, तो पाजी हो जाए। चलो और तुनक तुनक धुन तुनक तुनक धुन तुनक तुनक तुन दा 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 तुनक तुनक धुन तुनक तुनक धुन तुनक तुनक तुन दा 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 ढोलना बजे तुम्बे वाली तार, सुड़ दिल दी पुकार, आजा कर लिए प्यार, ढोलना तुनक तुनक धुन तुनक 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 तुन। ओ दुनिया यारा रंग बरंगी ना है पैड़ी ना है चंगी, ओ दुनिया यारा रंग बरंगी ना है पैड़ी ना है चंगी, सुन यारा बोले एक तारा मेहंदी दा यारा, तुनक तुनक धुन तुनक तुनक धुन तुनक तुनक तुन दा दा दा। लिसनर्स मजा तो आया होगा बिल्कुल। ये पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, पाजी हमारे साथ थे और मजा ना आया हो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच पाजी, बहुत मजा आया आपसे बात। थैंक यू सो मच। और आप सुनते रहिए रेडियो महारानी, क्योंकि ये है कुछ कुछ हटके। हटके।